Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to continue our discussion on cell membrane. In part 1 of the video हमने lipid bilayer के बारे में पढ़ा था and we have covered cholesterol too. Now in this part we are going to cover proteins of the cell membrane. Proteins किस तरह से cell membrane का structure form कर रही होती हैं. These membrane proteins are mainly glycoproteins. जो proteins होती हैं हमारे cell membrane में they are usually present in combination with carbohydrates. Now there are two types of cell membrane proteins. Cell membrane में हमें दो तरह की proteins देखने को मिलती हैं. And what are they? Integral proteins and peripheral proteins. So what are integral proteins? Integral proteins कौन सी proteins हैं? Integral proteins और transmembrane proteins pass through entire thickness of the cell membrane. ये वो प्रोटीन्स हैं जो आपको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई नज़र आएंगी. दैट इज़ दे पास द इंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस को क्रॉस करेंगी. सो दीज आर बेसिकली द इंटीग्रल प्रोटीन्स. एज यू कैन सी दैट दे आर पासिंग थ्रू द इंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को जो है क्रॉस कर रही हैं. Many of the integral proteins provide structural channels or pores through which water molecules and water-soluble substances, especially ions, can diffuse between the extracellular and intracellular fluids. अब क्योंकि ये जो proteins होती हैं ये पूरी cell membrane की thickness को cross कर रही होती हैं, so they can act as channels also. Channels means ये एक पूरा passageway provide करती हैं. So this is the integral protein that is providing channel to water and water soluble substances to pass the entire thickness of the cell membrane. क्योंकि water और water soluble substances lipid bilayer को without any specific passageway cross नहीं कर सकते. जो middle portion है phospholipid bilayer का वो water insoluble है, वो उन substances को गुजरने ही नहीं देगी. तो क्या होता है कि ये proteins जो होती हैं वो as a channel काम कर रही होती हैं to provide passage to water and water soluble substances कि वो cell membrane के in और out move कर सकें. So this is the integral protein and here is the integral protein that is acting as channel. ये एक channel के तौर पे काम कर रही है. ये एक तरह से passage way के तौर पर काम कर रही है जिससे water soluble substances और ions cross कर सकते हैं. Some integral proteins act as carrier proteins. कुछ integral proteins ऐसी होती हैं जो बाकायदा कैरी कर रही होती हैं सब्सटेंस को इन और आउट बाइंड करवा कर उन्हें मूव करवाती हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैरियर, क्योंकि वो कैरी कर रही हैं सब्सटेंस को. फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस दैट अदरवाइज कुड नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर. ये उन सब्सटेंसेस को कैरी करती हैं कैरियर प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर को किसी सूरत क्रॉस नहीं कर सकते. तो कैरियर प्रोटीन क्या कर रही हैं? कैरियर प्रोटीन बेसिकली उनके साथ बाइंड करती हैं, फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं. समटाइम्स दीज कैरियर प्रोटीन्स इवन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द डायरेक्शन opposite to their electrochemical gradient for diffusion. It means these carrier proteins are providing active transport. Active transport कौन सा transport होता है? Against the concentration gradient on the expense of ATP. ये वो transport होता है जो against the concentration gradient होता है. If this is the cell membrane, this is the inside of cell and this is outside. सेल के इनसाइड पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं और सेल के आउटसाइड पोटेशियम आयंस कम होते हैं. तो इट मीन्स पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा है और आउटसाइड द सेल कम है. अगर पोटेशियम आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मूव करते हैं तो दिस इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो विदाउट एनर्जी को यूटिलाइज किए ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है. इस किस्म के ट्रांसपोर्ट में जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा हो, जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम की जगह पर मूव करे, इस किस्म के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट इफ़ द पोटेशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टेंड्स टू मूव इनसाइड, they will need ATP because they are moving against the concentration gradient.
ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, ये कम से ज़्यादा जगह की तरफ मूव कर रहे हैं. सो दे आर मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो फॉर दिस ट्रांसपोर्ट एनर्जी और ATP इज़ रिक्वायर्ड. मॉलिक्यूल्स उस जगह से जहाँ वो कम हैं, अगर उस जगह पे जाएंगे जहाँ वो ज़्यादा हैं, तो दे आर मूविंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दे विल नीड ATP फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट अगर मॉलिक्यूल किसी ऐसी जगह से जहाँ पर वो ज़्यादा हैं, किसी ऐसी जगह पर मूव करेंगे जहाँ वो ऑलरेडी कम है, तो दे आर मूविंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इस ट्रांसपोर्ट के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. सो यूजुअली चैनल प्रोटीन्स के ज़रिए से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एनर्जी के एक्सपेंस पर होता है. नाउ सम इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स. कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं वो एज एंजाइम्स भी एक्ट करती हैं. कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स एंटीजेंस के तौर पे एक्ट करती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में पार्टिसिपेट करती हैं. और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हार्मोन्स के रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं. मतलब कुछ हार्मोन्स आकर जब उनसे अटैच होते हैं तो वो उन हार्मोन्स को पैसेज वे प्रोवाइड करती हैं कि वो इन या आउट मूव कर सकें. नाउ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज़ पेरिफेरल प्रोटीन. सो व्हाट आर पेरिफेरल प्रोटीन्स? ये क्या होती हैं? पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ऑफन अटैच्ड टू द इंटीग्रल प्रोटीन. ये सेल मेम्ब्रेन में यूजुअली इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होती हैं. दे आर पार्शली एम्बेडेड in the outer and inner surfaces of the cell membrane. That is, ये सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस को क्रॉस नहीं कर रही होती, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन के किसी एक सरफेस पर होती हैं, या तो आउटर या फिर इनर, एंड डू नॉट पेनेट्रेट द सेल मेम्ब्रेन. और ये पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट नहीं कर रही होती लाइक इंटीग्रल प्रोटीन्स. इंटीग्रल प्रोटीन्स तो पूरी सेल मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट कर रही होती हैं और बाकायदा चैनल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं सर्टन मॉलिक्यूल्स के पैसेज के लिए. जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स आर यूजुअली प्रेजेंट अटैच्ड टू द इंटीग्रल प्रोटीन्स. ये यूजुअली इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड पाई जाती हैं. एज द नेम इंडिकेट पेरिफेरल. सो दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स. दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन के सर्फेस पर मिलती हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ पेरिफेरल प्रोटीन. दिस इज़ अ पेरिफेरल प्रोटीन. They can be present on either the outer surface of the cell or the inner surface of cell. ये freely bounded भी हो सकती हैं phospholipid layer के साथ, और they can be present in combination with the integral proteins. So now these peripheral proteins can act as enzymes. ये enzymes के तौर पे भी काम करती हैं. They act as transporters too. They also provide passageway to some substances. And they also act as receptors for certain hormones. तो ये certain peptide hormones के लिए as a receptor भी act करती हैं. So this is all about proteins in the cell membrane. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.